Good morning. Am I audible to you? Hello, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So, what was the last practical of your batch? Can anybody tell me which sensor we had seen in last week? Kindly please answer the questions. Which sensor we have completed in the last week? Bhumika, सर टेम्परेचर का देखा था. temperature का sensor का देखा था. Okay, fine. So today we'll see one new practical, that is to study and implement a program to use of LED and LDR sensors. So we'll use one LED bar and LDR, light dependent resistor sensor. Okay, so we can use this two sensor in your smart home automation system with the integration of Arduino. So what are the prerequisites? So here you can apply this knowledge for your mini project also, to study and implement a program to use of LDR and LED sensor code with Arduino Uno. So suppose lights on off करने आपको automatically, so you can use that LDR sensor, light dependent resistor. Okay, so what are the prerequisites? Your IoTL lab. What are the objectives? Learn the interfacing of LED and LDR with Arduino Uno. What is the outcome of the today's practical? After completion of this assignment, student will be able to understand the use of LED and LDR with Arduino Uno. Use the function like void setup, void loop, serial printing, serial begin. So we'll see these functions, or we can use these functions to write the code. Hardware and software. We require Arduino IDE as a software to write a code. Operating system Windows I am using. हार्डवेयर आपको जो लगने वाले हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं? Arduino Uno लगेगा, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लगेगा, सेंसर, LED बार हम यूज करने वाले इंस्टेड ऑफ दिस LED लाइट. आई एम यूजिंग दिस LED बार which is there in video. So this is LDR sensor. There are 3 pins. One is for plus 5 volt power supply. One is for collection of data from the sensor or transfer the data from sensor to your Arduino, and ground. These are the 3 pins are in LDR sensor. So video अगर मैं आप अगर वीडियो को मैक्सिमाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको वो सेंसर भी दिखाई देगा कैसे दिखता है. एक एलईडी लाइट्स के जैसे ही उसको 2 कनेक्शन है. देखो एलईडी लाइट के जैसे ही दिखने में है, बट ऊपर का जो भी सरफेस है वहां पे एक्चुअल सेंसर माउंट किया हुआ. So it is light dependent resistor, and third is Arduino board that we are using every time. While developing this assignment, various built-in function we are using. LED connection setup. So आपको LED का कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा पहले. उसके बाद LDR का कनेक्शन का सेटअप कैसे किया जाने वाला है वो आपको प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा. कौन से पिन कहाँ पे अटैच किए अकॉर्डिंग टू द कोड we will see. Okay, so these functions we are using, actually we had studied this function in last practical also, so I am not repeating this. It is available in last video also. What is delay? Can anybody tell me what is the delay? Swati Shinde, please tell me what is delay. Sir, delay means used to give delay in execution. Yes, suppose we have to pause for some time the execution, suppose 5 seconds.
2 seconds. So we'll provide the values in milliseconds as a parameter. Okay. So this is delay. We are new use one loop, if and else loop we are using in this program. If and else क्यों यूज किया जाता है, कौन बताएगा? कोतवाल प्रांजल बताओ, 48 रोल नंबर. What is the use of Yes, if sir. else loop? अगर सर if conditions true होगी तो if statement execute होगा, Hmm. अगर false होती होगी तो else statement execute होगा. Yes, it is the logic of if and else loop. So we are using this loop in this code also. Okay, so this is the circuit diagram of this LED and LDR integration. यहाँ पे registers का भी use किया है. हम LED बार use कर रहे हैं, देखो यहाँ पे built in register already दिए हुए. That's why we are not using. This structure is there on your that breadboard. I am using the kits, ready-made kits, but you can use, if you want to use the breadboards, you have to use that register also, which are there to connect the LED and LDR. Why we are using register? Can anybody tell me? Why we are using registers to connect the LED or some small sensor like LDR? Why we are using register? कोतवाल प्रांजल बताओ. 48. अक्षय केले, why we are using registers? Yes, sir. Why we are using register, Akshay? To connect LED Sir, it is and LDR like small sensor. Why the registers are used? sir, it is used for the CPU transfer the data and so on. Because of this, we use the register. No. For constant power supply providing purpose, we are using the registers. We are using stabilizers in the some old TVs and fridge. Yes or no? What is the use of that stabilizer? Voltage stabilizer. To give constant power supply to your device. This is the purpose of the register also. This is the main use of register, to provide a constant power supply. If voltage fluctuation is there, so device should not burn. That purpose we are using that registers to LED and LDR. Okay, got the concept? अगर पावर सप्लाई Yes, हाई sir. हो जाता है, लो हो जाता है, तो उस केस में बल्ब फटना नहीं चाहिए, या रजिस्टर जो भी आप यूज कर रहे हो उसका यूज करके आपका बल्ब फटता नहीं है या बर्न नहीं होता है, कुछ भी सेंसर का उसको हार्म नहीं होता है. दिस इज द मेन यूज ऑफ दैट रजिस्टर विच वी आर यूजिंग. गॉट इट? अरे समजलंय Yes, का sir. सगळ्यांना काय बोलतोय मी? Yes, sir. Yes, sir. So this is the source code. This we will see in actual that on Arduino IDE. So I am switching my window. So this is the actual code. Here 3 parts. In these 3 parts, the pins are the code is divided. So for first line, we have defined constant integer LED pin equal to digital pin provided 13 number. So LED के लिए जो reserve pin होती है 13 number, वो हमने डिसाइड किए. वहां पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है एलईडी पिन नाम का. वो कहाँ से डेटा कलेक्ट करवाएगा या कहाँ से डेटा ट्रांसफर करवाएगा? उस 13 नंबर के पिन से, जो हमने एलईडी ब्लिंकिंग के लॉजिक में भी 13 नंबर की पिन ली थी. व्हाई इट इज देयर? इट इज रिजर्व फॉर द बिल्ट इन एलईडी ऑन ऑफ पर्पस. वी विल आल्सो यूज दैट 13 number pin to blink the external LEDs. We can take the connection from that 13 number pin. After that, in next line, constant integer LDR pin is equal to A0. We have defined one constant integer variable का जो नाम है वो है LDR pin is equal to A0. आप यहाँ पे दूसरे नाम भी ले सकते हो आपको जो पसंद है. ये एलईडी के लिए 13 नंबर है, इसके लिए एलईडी पिन नाम लिया है. एलडीआर के लिए A0 एनालॉग सेंसर है, तो एनालॉग टाइप का डेटा ट्रांसफर होगा, इसके लिए A0 ये पिन नंबर लिया है. A0 कहाँ पे है?
अगर आप वीडियो में देखोगे, माय वीडियो इज विजिबल टू यू, अर्डिनो बोर्ड। देखो Yes, sir. यहाँ पे A0 पिन है, दिस वी विल यूज टू कनेक्ट अवर LDR सेंसर डेटा। ये डेटा वाला पिन A0 को कनेक्ट करेंगे। तो ये इतना कनेक्शन हम कर लेते हैं पहले, बाद में उसके आगे का कोड देखते हैं। सो दो सेंसर्स को मुझे कनेक्ट करवाना है, तो मैं पहले तो कोड ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं पिन कॉन्फ़िगरेशन पहले कर देता हूँ, बाद में अपन कोड के ऊपर स्विच होंगे। My screen is visible to you. 3 sensors. One is LED bar. Sorry, 2 sensor LED bar. LDR सेंसर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखो अब इसका आपको स्ट्रक्चर ठीक से दिखाई दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? देखो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. How many pins are there in this? One is ground, one is data, one is plus 5 volt power supply. This is your actual sensor. ये एलईडी बल्ब के जैसे मिलता है मार्केट में, 10 to 15 रुपीज में अवेलेबल है। पर इसका जो बोर्ड का कनेक्शन किया हुआ है, उसको रजिस्टर कनेक्ट किए हुए, तो ये किट के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो इतना ही पोर्शन जस्ट आपको मार्केट में मिलेगा। जैसे एलईडी बल्ब मिलता है वैसे ही एलडीआर सेंसर होता है। आपको रजिस्टर्स का यूज करके यहाँ पे पावर ऑन ऑफ हुआ है कि नहीं उसके लिए लाइट्स भी दिए हुए इस सर्किट में डिजाइन किए हुए। सो वी आर यूजिंग दैट किट एज यूर एलडीआर सेंसर। ओके, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे ही इस सेंसर के ऊपर लाइट्स आता है, सो इसके अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका मूवमेंट फास्ट होता है। उस मूवमेंट का यूज करके हम लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मीन्स अगर वो मूवमेंट हुई, जितने फास्ट हुई उसका एक्शन पकड़ के हम एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या आपको बजर ऑन ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम आज के प्रैक्टिकल में क्या देखने वाले हैं? अगर डे रहता है तो लाइट्स ऑफ हो जाने चाहिए, है ना। सनलाइट अगर आता है घर में तो लाइट्स घर के ऑफ हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। एंड अगर नाइट है उस केस में लाइट रहेगा क्या बाहर? सन का नहीं रहेगा। उस केस में अंदर के घर के लाइट्स ऑन हो जाने चाहिए। मीन्स डे टाइम में लाइट्स ऑफ घर के, और नाइट टाइम में ऑन। जो रिक्वायर्ड लाइट्स है घर के, उनके ऊपर आप ये सेंसर का अप्लाई कर सकते हो। फॉर स्मार्ट होम ऑटोमेशन पर्पस दिस सेंसर कैन बी यूज। You can give me the other application. At last I will ask you, please write one application in your notebook. You have to explain it with the help of that sensor, the real time use of LDR sensor. Okay, everyone have to give me one application regarding this sensor. I had tell you one application that you can use it in smart home automation. Okay, in day you can turn off your lights automatically, and in night you can turn on your lights of home automatically. This is the main purpose. After that we will use LED lights to on off. अभी घर के लाइट्स ऑन हुए या ऑफ हुए ये देखने के लिए हम जस्ट LED लाइट्स का यूज करने वाले हैं। ये जो इनबिल्ट LED है 13 नंबर का, यहाँ पे ये भी उसके साथ पैरेलल ऑन ऑफ हो सकता है। आपके पास अगर LED लाइट नहीं भी है और सिर्फ LDR सेंसर है, तो भी आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आउटपुट ले सकते हो। हम लाइट्स का भी यूज करेंगे और एक्सटर्नल लाइट्स का यूज करके भी वो चीज देखेंगे। तो व्हाट आर द कनेक्शंस आर देयर? So first 3 pins we will use to connect that LDR sensor. देखो प्लस 5 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पे, प्लस 5 वोल्ट वीडियो में दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. So I will provide plus 5 volt from the Arduino to that LDR sensor. देखो प्लस 5 वोल्ट यहाँ पे बहुत सारे, उसमें से कौन सा भी एक ले लो और यहाँ पे प्रोवाइड करो। उसको पावर हमने प्रोवाइड की, उसके बाद उसको ग्राउंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राउंड का पिन है, तो मैं किसी भी एक ग्राउंड के साथ उसको कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे पावर ऑन हो चुकी है, इसमें पावर आ गई। अब इसका डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए अलग पिन है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा। सो कोड के अंदर एनालॉग पिन हमने कौन सी डिफाइन की है डेटा कलेक्ट करने के लिए? बोलो जल्दी, अभी एक्सप्लेन किया मैंने 2 मिनट पहले। A0 पिन अलोकेट की हुई है। देखो कोड फिर से मैं शेयर करता हूं। कोड में देखो यहाँ पे
एलडीआर का डेटा कौन से पिन से लेना है? मुझे A0 से लेना है। आपको A1 से लेना है तो आप कोड में A1 लिखोगे, A2 से लेना है A2 लिखोगे। मैंने A0 से कलेक्ट करना है, इसके लिए कोड में क्या लिया है? A0 लिया है। समझ में आ रहा है क्या? A0। तो यहाँ पे A0 पिन है, देखो ये A0 के साथ ये डेटा वाली पिन मैंने कनेक्ट की। उसका एक एंड डेटा पे है यहाँ पे, और दूसरा एंड A0 पे कनेक्ट कर रहा हूं। हो गया कनेक्शन सेंसर का, तीनों पिन्स का? रिप्लाय करत जा मित्रांनो. Yes, sir. हा, इकडे खूप मेहनत घेऊन चालू आहे सगळं, कॅमेरा लावणे, सेन्सर लावणे. प्लीज रिप्लाय तरी करा तिकडून बसून. तुम्ही एन्जॉय करा तुम्ही प्रॅक्टिकल, पण रिप्लाय करा. मला मला समजेल तुम्हाला समजताय का नहीं. ये एलईडी बार लिया है, ये एलईडी बार का भी कनेक्शन करना पड़ेगा. हाउ मेनी कनेक्शन वी हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ एलईडी बार. सपोज आई वांट टू ऑन एंड ऑफ द वन एलईडी, so how many connections are required? Who can tell me how many connections we require to connect one LED bar or one LED from the LED bar? अरे प्रज्ञा बताओ. 56 रोल नंबर. रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, मैं कंटिन्यू करूंगा. बोलो अरे, कितने वायर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे? मुझे एक ही एलईडी बल्ब ऑन करना है, तो मैं कितने कनेक्शंस करूंगा? 1. देखो मुझे 2 कनेक्शंस लगेंगे. 1 इज फॉर 13 नंबर पिन. अब ये जो एलईडी का पिन है, देखो मैंने कोड के अंदर 13 नंबर को रिजर्व किया है, सो आई विल यूज 13 नंबर डिजिटल पिन टू कनेक्ट दैट बल्ब. मैंने डिजिटल 13 नंबर की पिन ली है, और एक ग्राउंड भी प्रोवाइड करना पड़ता है, सो 2 कनेक्शंस लगते हैं. समझा आई रे प्रज्ञा? Yes, sir. हाँ देखो, मैंने ऑलरेडी कोड को रनिंग कंडीशन में रखना है. अब मैं क्या करूंगा? ग्राउंड का कनेक्शन लूज था, इसके लिए मैंने फिर से ग्राउंड का कनेक्शन किया है. अभी जो कोड में डिफॉल्ट वैल्यू सेट किए हुए वो मैं पहले बता देता हूँ. यहाँ पे ये लाइट क्यों ऑन हुआ है उसका रीजन आपको मिल जाएगा, कोड में किया हुआ है. अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से कोड दिखाने के लिए. कोड दिख रहा है आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे मैंने 2 पिन सेट करवाए, कांस्टेंट इंटीजर वेरिएबल लिया है. LED pin is connected with 13 number digital pin, and analog pin A0 is connected to the data pin of your LDR sensor, light dependent resistor sensor. Now void setup. अब ये पार्ट क्या है, वो काय के लिए लिखा है वो हम देख लेते हैं. देखो, serial begin 9600. We have set up the baud rate. Why we are setting that baud rate? I had explained in the last practical. Okay, why we are setting that baud rate? So how fast the inputs and outputs are taken from the sensors. That's why we are setting that value of baud rate. You can change that value 9600. आपको कितना फास्ट इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, उसके लिए 9600 ये स्टैंडर्ड baud rate मैंने सेट किया. आप अलग वैल्यू भी वहां पे ले सकते हो. कितना क्विक रिस्पॉन्स आपके सेंसर का रहेगा इनपुट देने का और आउटपुट लेने का, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है. व्हाट इज पिन मोड? कौन से पिन के यूज करके हमें आउटपुट सिलेक्ट करना है, कौन से पिन का हमें इनपुट देना है, ये यहाँ पे सेट करते हैं. यहाँ पे दोनों भी है. देखो इस प्रैक्टिकल में आउटपुट एलईडी पिन से लेना है और इनपुट कौन सा कंसीडर करना है, एलडीआर पिन का. ऐसा क्यों दिया है? जैसे मैं लाइट उसके ऊपर एलडीआर सेंसर के ऊपर लाइट ऑन करूंगा, मीन सनलाइट के रेज दूंगा, या मेरे मोबाइल के फ्लैश के थ्रू में भी डे कर सकता हूं. अगर मैं लाइट प्रोवाइड करता हूं तो अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एलडीआर सेंसर के, उनका मूवमेंट फास्ट होता है, वो फास्ट मूव होते हैं. तो उसकी वैल्यू मुझे सीरियल मॉनिटर से देखनी पड़ती है.
जो भी है, जो भी वैल्यूज है। सो अगर मुझे आउटपुट लेना होता है, आउटपुट देखना है स्क्रीन के ऊपर, तो जैसे मैं इक्लिप्स में यूज करता हूं कंसोल, वैसे अर्डिनो के आईडी में हम क्या यूज करते हैं? टू चेक द वैल्यूज, टू चेक द टेम्परेचर, टू चेक द लाइन्स आर प्रिंट ऑन द console or not. What is the name of that console? Console like application which is there in the Arduino IDE. So we are using that serial monitor. So in tools, serial monitor is there which continuously print your that value of lights. Light के intensity का value वहां पे continuously 100 दे रहा है। अब ये वैल्यू मेरे रूम के लाइट का वैल्यू है, अभी मैं जहां पे बैठा हूं उसका वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है। एलईडी इज ऑन करके 100 लाइट है। देखो अब वाइड लूप में हमने यहाँ पे पिन मोड में क्या सेट किया? एलईडी पिन कॉमा आउटपुट, वी विल कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम एलईडी। हमें एलईडी के ऊपर से समझ में आएगा, लाइट ऑन है तो नाइट मोड है, लाइट ऑफ है तो डे मोड है। जो वैल्यूज आप वाइड लूप में सेट करते हो लाइट के इंटेंसिटी के, वहां पे वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके सेंसर्स के ऊपर। अब वाइड लूप के अंदर वाला पार्ट हम समझ के लेते हैं क्या लिखा हुआ कोड के अंदर। तो वाइड लूप में पहले तो इंटीजर एलडीआर स्टेटस इज इक्वल टू एनालॉग रीड एलडीआर पिन। एलडीआर पिन से वो क्या करेगा? ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है एनालॉग रीड, जो अर्डिनो के कीवर्ड्स में रिजर्व है, ये फंक्शन रिजर्व है, वहां से जस्ट हमने उसको यूज किया है। वो क्या करेगा? एनालॉग रीड से आपके एलडीआर का लाइट का जो भी वैल्यू है, लाइट की जो भी इंटेंसिटी की वैल्यू है, वो प्रिंट करेगा। कहाँ पे प्रिंट करेगा? देखो सीरियल मॉनिटर पे वो वैल्यू कंटिन्यूअस में आ रही है, 100 देखो कंटिन्यूअस दिख रहा है कि आपको सीरियल मॉनिटर का विंडो? अभी के मेरे Yes, sir. लाइट की पर्टिकुलर रूम में जहां पे मैं बैठा हूँ वहां पे 99 100 ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा है वैल्यू लाइट का। यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे 800 गलती से कमेंट में लिखा गया है, दीज आर द कमेंट पार्ट। अब मैं इफ के कंडीशन के ऊपर स्विच हो रहा है। देखो इफ एलडीआर स्टेटस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन डिजिटल राइट एलईडी पिन ग्लोज हाई। देखो ये वैल्यू अगर 80 से कम रहेगी, सॉरी 80 से ज्यादा रहेगी, तो आपका एलडीआर पिन का जो भी एलईडी पिन का जो भी है वो हाई होना चाहिए। एलईडी मीन्स आपका लाइट ऑन होना चाहिए, मीन्स नाइट है। 80 ये मिड का वैल्यू सेट किया हुआ है। मेरे लाइट के रूम के लाइट के अकॉर्डिंग ये एवरेज वैल्यू मैंने लिया है। कैसे लेना है वो वैल्यू? सीरियल मॉनिटर में देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, आपको वैल्यू कैसे लिखी है वो दिखाना है मुझे। अब ये तीनों चीजें आपको विजिबल है क्या स्क्रीन पे? ये एलडीआर सेंसर, एलईडी लाइट और अर्डिनो तीनों भी विजिबल है। देखो मैं मेरे मोबाइल का फ्लैश ऑन कर रहा हूँ। कहाँ पे? मैंने फ्लैश ऑन किया है मोबाइल का उस सेंसर के ऊपर। देखो मेरा फ्लैश ऑन है, मैंने क्या किया उस सेंसर के ऊपर उसको लेके गया। देखो एलईडी ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे लाइट की जो भी वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। जब ऑन होता है एलईडी, सॉरी ऑन होता है फ्लैश लाइट, मीन्स डे है, उस केस में सीरियल मॉनिटर के ऊपर मैं उस लाइट के इंटेंसिटी की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर से स्क्रीन शेयर किया है और आपका जो भी टूल है उसके अंदर से सीरियल मॉनिटर को ऑन किया है। देखो इट इज 43 वैल्यू। यस और नो? 43 44 ऐसे डिस्प्ले कर रहा है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मूव कर लेता हूं, मैंने जो फ्लैश ऑन किया हुआ है उस सेंसर के ऊपर वो निकाल लेता हूं। अब वैल्यू कितनी है देखो, 199 199 एलईडी इज ऑन। यू कैन सी जब मैं सनलाइट या फ्लैश लाइट इस सेंसर के ऊपर से निकाल ले रहा हूं तब वो वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो 100
और 48 या 47 जो भी वैल्यू प्रिंट हुई थी, इनका एवरेज वैल्यू क्या है, 80 सपोज मैंने कंसीडर किया। 80 ये वैल्यू कौन सा है, डे के लाइट के इंटेंसिटी का और नाइट के लाइट के इंटेंसिटी का एवरेज है। मीन्स 80 से ज्यादा वैल्यू रहेगी तो आपको आउटपुट कलेक्ट करना है, या 80 से कम वैल्यू रहेगी तो आपको आउटपुट कलेक्ट करना है। ये वैल्यूज आपको आपके लाइट के रूम के लाइट के हिसाब से डिसाइड करनी होती है। अब देखो मिड वैल्यू मैंने ली है 80 वैल्यू। ये 80 वैल्यू कोड के अंदर क्यों ली है मैंने समझ में आया कि आपको, मैं फिर से कोड शेयर कर रहा हूं। देखो कोड के अंदर इफ LDR स्टेटस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मींस नाइट रहेगा। उस कंडीशन में डिजिटल राइट आपका LED पिन हाई होना चाहिए। नाइट में आपके LED लाइट्स या घर के लाइट्स ऑन होने चाहिए। फिर आपको कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे printf के जैसे स्टेटमेंट लिखा है, सीरियल प्रिंट LDR स्टेटस। वो LDR स्टेटस मीन्स वो वैल्यू जो सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट हो रही है वो वैल्यू है। फिर आप उस केस में और एक printf स्टेटमेंट डाल सकते हो, LDR इज डार्क हेंस LED इज ऑन। ऐसे टाइप के स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, जैसे वहां पे वो प्रिंट होके आ रहा है। फिर से एक बार टूल्स में जाके सीरियल मॉनिटर ऑन करके दिखा देता हूं मैं। LDR इज डार्क, LED इज ऑन। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट 80 एवरेज वैल्यू ऑफ डे एंड नाइट। इतना पार्ट आपको समझ में आया है इफ के कंडिशन का, या फिर से समझा के दू? समजतंय का मित्रांनो? सर एकदा सांगा ना. परत सांगतो। देखो LDR सेंसर होता है जो आपको एक वैल्यूज लाइट के इंटेंसिटी की वैल्यू देता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है क्योंकि वो वैल्यू रिवर्स है। अगर लाइट ऑन हो रहा है तो उस केस में वैल्यू कम दे रहा है, और लाइट ऑफ है उस कंडीशन में वैल्यू ज्यादा है। ये लॉजिक समझ में आया आपको? यहां तक समझा है? येस सर. एक बार मैं क्या करता हूँ ना, आपको ये हार्डवेयर के ऊपर वैल्यू पहले समझा देता हूँ, बाद में अपन कोड के ऊपर स्विच होते हैं फिर से। ओके चलेगा ऐसे? मीन्स आपको एक्चुअल लॉजिक समझ में आएगा ये कोड में क्या लिखा है। मैं क्या करता हूँ, ये स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। हम सेंसर के ऊपर आउटपुट पहले लेके देखते हैं। देखो मैंने पूरे कनेक्शंस किए। माय डेटा ऑफ दैट LDR इज कनेक्टेड विथ A0। देखो ये A0 के साथ कनेक्टेड है। माय LED पिन इज कनेक्टेड विथ योर 13, और दोनों सेंसर को ग्राउंड और VCC दिया है। इतना कनेक्शन समझ में आया सबको? यस और नो? येस. हाँ। Yes, अब ये sir. LDR का सरफेस दिख रहा है आपको, ये छोटा सा। इस छोटे सरफेस के ऊपर मैं मेरा फ्लैश लाइट मोबाइल का ऑन कर रहा हूँ। फ्लैश लाइट ऑन होना, इसका मीनिंग क्या? डे होना। ये अपन कंसिडर कर रहे हैं प्रोटोटाइप में। आप सनलाइट के केस में सनलाइट भी ले सकते हो, सनलाइट यूज कर सकते हो। रूम में अभी सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे इंस्टेड ऑफ दैट आई एम यूजिंग फ्लैश लाइट ऑफ माई मोबाइल। तो मैंने फ्लैश ऑन किया। देखो मैंने फ्लैश ऑन किया है मोबाइल का, और मैं वो फ्लैश ऑन कंडीशन कहाँ पे रख रहा हूँ? उस सेंसर पे रख रहा हूँ। सेंसर पे मैं जैसे ही ऑन कंडीशन रख रहा हूँ, लाइट ऑन कंडीशन, तो उस केस में वहां के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट फास्ट होती है और वो लेस वैल्यूज देते हैं। वो वैल्यूज कहाँ पे देखना है आपको? जाके आपके सीरियल मॉनिटर पे वो वैल्यूज मैंने प्रिंट किए कोड के थ्रू। सीरियल मॉनिटर पे जाते हैं हम, टूल्स, सीरियल मॉनिटर। देखो ये वैल्यू प्रिंट हो रही है 46, 42, 41। जैसे ही मैं उसके पास पास जा रहा हूँ वो वैल्यू कम दे रहा है। मैंने मेरा जो भी फ्लैश लाइट है एकदम पास रखा है LDR के, देखो 22 भी वैल्यू दे रहा है वो, बट मैं सर स्क्रीन एवरेज नाही दिसत. देखो। ओके वेट, अब आपको वीडियो और स्क्रीन दोनों दिख रहे हैं क्या? येस सर. अब देखो मैंने थोड़ा सा
दूर रखा है मेरा फ्लैश लाइट, वैल्यू क्या आ रही है 52 53 स्क्रीन पे दिख रही है लाइट की वैल्यू, डिपेंडेंट रजिस्टर की वैल्यू। अब मैं पास में जाता हूँ, थोड़ी वैल्यू और कम हो गई, जैसे लाइट ज्यादा हो रहा है ना वैल्यू कम हो रही है। देखो मैं एकदम से नजदीक रखा हुआ फ्लैश लाइट, वो 18 17 ऐसे वैल्यूज दे रहा है। अब मेरा जनरल जो सिनारियो रहेगा वो ऐसा रहेगा 40 वाला, ये 70 वाला भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो आपके रूम के लाइट के ऊपर ये डिपेंडेंट होती है वैल्यू, सेंसर वैल्यू क्या सेंस कर रहा है। गॉट इट, ये लॉजिक समझा है आपको? हाँ। अब Yes, मैं क्या sir. कर देता हूँ, फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ। अब वैल्यू चेक करो क्या है, 107 100 देखो अभी बाहर का जो सनलाइट है ना वो ज्यादा आने लग गया है रूम में, तो उस केस में वैल्यूज भी ज्यादा है, डार्कनेस बढ़ गया है। सनलाइट कम है, लाइट बंद है तो वैल्यू ज्यादा है, उल्टा है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस और नो? मैंने फ्लैश बंद कर दिया है तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, लाइट के इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है। एलडीआर जो वैल्यू दे रहा है सेंस करके वो वैल्यू ज्यादा आ रही है, 100 के आसपास वो वैल्यू है, 106 105 नियर अबाउट दैट। ये चीज समझ में आ गई आपको? अभी इतना लॉजिक समझा है, अब अपन कोड के तरफ जाते। देखो कोड में क्या किया है, इफ एलडीआर स्टेटस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, my voice is clear to you dear student? Hello, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am asking because my internet connection was break in between, that's why I'm asking. Thank you. So if LDR status is greater than equal to 80, then you have to perform that action, you have to digital write LED pin high. ये 100 से सॉरी 80 से ज्यादा रहेगी, मीन्स 100 थी तो उस केस में एलईडी हाई है। देखो मीन्स वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब नाइट है, तो आपका एलईडी ऑन रहेगा। यहां तक समझा अभी आपको? फिर आपको सीरियल मॉनिटर के ऊपर क्या प्रिंट करवाना है, उस लाइट के इंटेंसिटी की वैल्यू। उसके लिए ये कोड लिखा है, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, न्यू लाइन पे प्रिंट करना है आपको एलडीआर का स्टेटस। एलडीआर का स्टेटस मीन्स क्या है, वो जो वैल्यू प्रिंट हो रही है लाइट की वो एलडीआर का स्टेटस है। उसके बाद आप प्रिंटफ स्टेटमेंट दे सकते हो, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन एलडीआर इज डार्क, मीन्स नाइट हो चुकी है, हेंस एलईडी इज ऑन, या प्रिंट कर सकते हो। इसके रिवर्स में नीचे अगर ये एग्जीक्यूशन, ये एलडीआर का स्टेटस ग्रेटर देन 80 नहीं है तो एल्स वाला पार्ट रहेगा। वो क्या पार्ट है, डिजिटल राइट एलईडी पिन इज लो। अगर ये वैल्यू 80 से ग्रेटर नहीं है, मीन्स 80 से कम थी, 43 44 ऐसे वैल्यू आ रही थी, तो उस केस में आपका एलईडी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 100 से वैल्यू ज्यादा गई, 100 एंड वो है तो डार्कनेस है, उल्टा है। हाँ, वैल्यू ज्यादा है मीन्स नाइट है, वैल्यू कम है तो डे है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट एलडीआर सेंस। ये चीज समझ में आई आपको? फिर आपको यहाँ पे फिर से सीरियल डॉट प्रिंट एलएन से एलडीआर का करंट स्टेटस वैल्यू प्रिंट करवाया है। जब लाइट डार्कनेस हो जाएगा तब क्या करना है, फिर आप वहां पे एक स्टेटमेंट, ये ब्लैंक लाइन आ रही है उसके जगह पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, LDR is not dark, LED is off, ऐसे प्रिंट कर सकते हो। यस और नो? कोड समझा है क्या? कंफ्यूजिंग लग रहा है तो फिर से पूछो, फिर से अपन एक्सटेंड करेंगे प्रैक्टिकल को। योर टाइम इज रनिंग। मैंने इसको फिर से कंपाइल करना है, मैंने चेंजेस किए इसके लिए, फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब हम सीरियल मॉनिटर को भी ऑन रख के देखेंगे। टूल्स,
सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ वैसे मेरा LDR का देखो 199 199 LED इज डार्क, सॉरी LDR इज डार्क, हेंस LED इज ऑन। देखो ऑन है LED बल्ब मेरा जो बार के ऊपर यूज किया है मैंने। आपको वीडियो भी दिख रहा है क्या सेंसर का? स्टॉप शेयर किया मैंने, Yes, देखो sir. अब वीडियो ही दिखेगा सिर्फ। Yes, sir. अब मैं क्या कर देता हूं, वैल्यू क्या थी डार्क के टाइम पे? 100 101 ऐसी थी सीरियल मॉनिटर पे। अब मैं फ्लैश लाइट फिर से ऑन करता हूँ, मोबाइल का फ्लैश लाइट। अभी डे हो गया, फ्लैश लाइट ऑन हो गया, मीन सन आ गया। तो देखो LED ऑफ हो गया, यहाँ का ये ऑन ये ऑफ, ऑन ऑफ। लाइट आ गया तो ऑफ हो रहा है, नाइट मोड आ गया तो ऑन हो रहा है, फिर से डे हो गया ऑफ, नाइट हो गई ऑन, डे नाइट। LED ऑन ऑफ हो रहा है क्या मित्रांनो, समजताय का? देखो डे कंडीशन है, फ्लैश लाइट ऑन है, उस केस में यहाँ का LED बल्ब ऑफ है। अब नाइट हो गई तो लाइट घर के ऑन हो चुके। लाइक दैट द लॉजिक इज देयर इन बिटवीन दैट इफ एंड एल्स लूप। ये चीजें समझ में आई आपको? कोड समझा है क्या? अब ये केस में फिर से हम डे करते हैं और सीरियल मॉनिटर का आउटपुट चेक करते हैं। देखो 27 कोड रन नहीं हुआ है, वो प्रिंट हो रहा नहीं है स्टेटमेंट। फिर से एक बार कोड को रन करते कंपाइल करके, क्योंकि मैंने एक printf का स्टेटमेंट डाला था वो रन नहीं हुआ है। मैं स्क्रीन को फिर से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कोड को मैं फिर से कंपाइल करता हूँ और बिल्ड करता हूँ, रन करता हूँ, अपलोड करता हूँ मेरे कोड को। अब ये जो सीरियल मॉनिटर ऑन है इसको क्लोज कर देते हम, फिर से इसको ऑन करते हैं। सीरियल मॉनिटर इज ऑन। अब ये जो वैल्यू दे रहा है देखो, डार्क है तो LED ऑन है, LED अपना ऑन है, सेंसर का भी। अब मैं डे कर देता हूँ, डे मीन्स वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो वहां पे LED इज ऑफ लिख के आ गया, मैंने जो चेंज किया था कोड में डैश डैश की जगह पे वहां पे लाइन प्रिंट होके आ रही है, दिख रहा है? अब मैं थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ फ्लैश लाइट, वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने जो स्टेटमेंट LED ऑफ के लिए प्रिंट किया था वो प्रिंट होके आ रहा है अभी? Hello dear student, it is visible to you the value which is there for the light. It is less than 80. That's why your LED is off. If it is greater than 80 means night mode, your LED is on. Simple logic is there. But that value is change every time according to your lights present in your room. अब ये मेरे रूम के अकॉर्डिंग वैल्यूज है, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा वो वैल्यू का, फिर आपके घर पे भी ये प्रैक्टिकल रन हो सकता है। गॉट इट? समझ में आया है? Yes, sir. So I am ending the meeting. Have you taken the screenshot of attendance? Yes, sir. तो इसका